कि 4 स्टेजेस हैं एक लॉयर की लाइफ में। पहली स्टेज है नो वर्क नो मनी, सेकंड स्टेज आती है सम वर्क एंड लिटिल मनी, थर्ड स्टेज आती है वर्क एंड मनी, which is the stage by which most of the lawyers actually end their careers. और एक लास्ट स्टेज आती है little work and very high amount of money, which is the people who are seen everywhere. फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के साथ ऐसा हो जाता है कि जो मतलब जहाँ से आपका स्ट्रगल शुरू होता है वहाँ पे एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर के सपने पूरे हो जाते हैं। Because इस प्रोफेशन में temptations बहुत ज़्यादा हैं, because you are dealing with a lot of public. जैसे मान लीजिए जज ने पार्ट आउट मार्क नहीं किया तो मैटर अगर आर्ग्यूमेंट्स आधी हो गए तो फिर दूसरे जज के पास जाते हैं और फिर वो वापस शुरू हो जाते हैं, वो मैटर शुरू से आगे। I accept that is a problem, definitely a problem. तो आपने हमारे हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो एक सीट कम कर दी, मगर अब जिस वॉल्यूम में ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं 12 13 ऑल ओवर द कंट्री, 12 ट्रांसफर आउट ऑफ 700 जजेस मे नॉट साउंड वेरी बिग, बट एट व्हाट पोजीशन आर दे? सर अब जैसे एलसीज अपॉइंट करता है, अमिकस अपॉइंट करता है कोर्ट से, वो किस बेसिस पे कोर्ट अपॉइंट करता है? व्हाट डू यू वांट टू हियर कि आज जाके किसी ना किसी के साथ लड़ाई करनी है? नहीं सर, पढ़ सकते लेकिन सर फाइलिंग कोई नहीं बताता हमें। फजल, उसी के लिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा इनके करिकुलम्स में बदलाव आना जरूरी है। तो अगर आपके सामने कोई चैट जीपीटी के थ्रू काम करके लाए और आपको पता चल जाए चैट जीपीटी के थ्रू है, मान लीजिए आपको कोई जूनियर लेके, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरा रिएक्शन वो होगा जो इस पे नहीं आ सकता। अरे बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये आती है कि जैसे ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं वकीलों पे कोई प्रायोरिटी नहीं है। गवर्नमेंट के लिए चेम्बर ब्लॉक इज नो प्रायोरिटी। लॉ may be a science when it comes to dealing with things, but in understanding and in presenting, it's an art. So hello and welcome to the 4th episode of Frankly with Fazal. Today for the podcast as a guest we have former DHCBA president and senior advocate Mr. Mohit Mathur sir. And the topic for today's podcast is functioning of the Delhi High Court and the practice in the Delhi High Court. So welcome to the podcast. Thank you, Fazal. So first thing, जब आप दिल्ली हाई कोर्ट का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? Fazal, frankly, I have as a small child seen this building come up. We used to cycle up to this place. So my father being a member of the Delhi High Court, then president and senior advocate there, I always used to find myself really enamored by the fact that it's the Delhi High Court, something great. Then having joined the bar and then coming there and almost going to the High Court regularly for the last 30 plus years. Now the name has become synonymous with our routine and life. So it's only on holidays that you start feeling, okay, how does one get to go there, have your cup of coffee with friends and the famous Delhi High Court canteen samosa. So that's what is enticing and that's what keeps you kicking. So Delhi High Court for me is like a second home. Yes, sir. And the name itself, it just somehow resonates a sense of feeling of such belonging that you just want it to be at the top. आपको अपना पहला दिन याद है दिल्ली हाई कोर्ट की जब आप गए थे एज अ लॉयर? मुझे डिस्टिंक्टली याद है अपना पहला दिन. If I mistake not, it was I think 9th of August 1991 and that was the day when our sanad was to be given. The bar council used to have its office. तो हम लोग बैच जो भी उस टाइम पे फर्स्ट राउंड में पास हो गए थे and who had filled the forms. तो we were 4 friends of us जो इकट्ठा हमने अपनी सनद ली सेम डे. गए ऐसे immaculately dressed, not knowing what actually is in store for you. And that day though we didn't actually do much, but just as told by the other seniors in of the college who told us कि एक बारी जाके हाई कोर्ट की ज्योग्राफी समझो. And this high court used to be a smaller place than what it is today. And वहाँ पार्किंग लॉट जो इतना भरा होता आजकल, that used to be practically empty, इतना भरा नहीं होता था. We came there, we went around the whole place. एक नेस्कैफे की शॉप होती थी, वहाँ कॉफी पी, waiting for the matters. दूसरों के जो पता चला कि कोई some good senior is arguing in a particular court, तो जाके पीछे चुपचाप खड़े हो गए. There was an awe. It was absolutely awesome for us that day. And spending that 3 hours before the interview for the
बार काउंसिल वाज लाइक एक एक स्टेप फूक फूक के वही, सो दैट वी डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग. दैट्स हाउ इट वाज. तो आपको कोई एडवाइस मिली थी घर से कि आज जैसे आपने कहा कि ज्योग्राफी समझ के जाना? एडवाइस क्या, माय फादर एट दैट टाइम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बार, एंड एडवाइस तो क्या कम मिलती थी, डांट ज्यादा मिलती थी कि बेइज्जती मत कराना, बेकार की चीजें मत करना. And then I knew so many lawyers who would be coming to our house, dad ke friends and juniors and all. So there was a lot of people I knew beforehand. So I was a little cautious that I make no mistakes, not on the first day at least. उसके बाद तो फिर ठीक है, as life will take me. अब I think अब 3 decades तो हो चुकी है, अगर 1991 से लगाए बिल्कुल अब तक. तो सर एक सवाल मुझे ये है कि अब आप सब प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बार के, आपको हाई कोर्ट के बारे में हर चीज मालूम है. सर जब एक यंग बच्चा हाई कोर्ट में अब आता है, आपको क्या लगता है एज अ जूनियर जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो क्या वो अंडरपेड है या नहीं है? इस पे मेरे थोड़े से व्यूज ना बाकियों से थोड़े फर्क हैं. सी, एक तो द नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड टू जॉइन दिस प्रोफेशन वाज much less when we did. Today the number of people who join is a very large number. जैसे एक my advice to everyone is that at least the first year or two one should spend with some other senior lawyer. Senior may not be a designated senior, but somebody senior to you who can give you an insight into what is happening, how the petitions are drafted, because what theory teaches is far too different from what is in the practical side. So somebody to bridge that gap, some interface. Problem आती है जहाँ the lawyers want to, the students want to graduate, get their degree, enrollment, and immediately want to rush into the court as if they have become some Rani Jethmalani or Ram Jethmalani or Nani Palki wala types. तो वो तो it's not possible. You've got to be groomed. Now that grooming is the task of the seniors. Yes. Seniors at the bar. Now, if we have a number which can be accommodated by these seniors, even those who are 5-10 years in the profession can groom a youngster because they can actually give him a background. Now, underpaid or overpaid is again the job of the senior who's going to keep that associate with him. Yes. और जिसको वो ग्रूम करता है. थोड़ा सा इस प्रोफेशन में आने से पहले मेरे हिसाब से एक जो आपके लॉ कोर्सेज हैं वहाँ पे आपको जब ये इंटर्नशिप कराते हैं तो एक थोड़ी सी इस चीज़ की भी आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए और आपको एक प्रिपेयर करना चाहिए कि दिस इज अ प्रोफेशन वेयर एज समबडी रियली वाइज एंड एल्डरली हैड सेड कि 4 स्टेजेस हैं एक लॉयर की लाइफ में. पहली स्टेज है नो वर्क नो मनी. सेकेंड स्टेज आती है सम वर्क and little money. Third stage आती है work and money, which is the stage by which most of the lawyers actually end their careers. और एक last stage आती है little work and very high amount of money, which is the people who are seen everywhere. वही limelight में होते हैं और वही celebs हैं इस profession के. और उन celebs को देख के आप एक aspiration के साथ जब आते हो तो उनके जो रगड़ा वाला period है, जो उन्होंने toil किया है, जो अपना मिडनाइट ऑयल बर्न किया है, वो तो आप भूल जाते हो और आपको दिखाई देता है उनके इनकम लेवल्स. दैट इज नॉट करेक्ट. उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली अ लॉयर इमीडिएटली ज्वाइनिंग इज अंडरपेड. और दूसरी चीज क्या है कि ये प्रोफेशन ऐसा है कि अगर आपको ये 3 स्टेजेस समझ में आ गई तो आप अपने पीयर को नहीं देखोगे फिर, क्योंकि वो तो नौकरी में लगते ही कुछ 10-20-50 हज़ार रुपए कमाने लगता है और आपको लगता है कि मैं तो अभी स्कूटर में पैसे डालने के पैसे भी नहीं है मेरे पास. वो गलत है, क्योंकि जब आपकी फ्लाइट पकड़ती है, आपका करियर पकड़ता है फ्लाइट, तो फिर वो आपके बहुत ड्वार्फ हो जाते हैं. उनके करियर्स और आपके करियर्स में जमीन आसमान का अंतर आया था. यू टेक अ फ्लाइट एंड देन यू आर स्काई रॉकेटिंग, देन देयर इज नो लिमिट. मींस एवरीबॉडी हैज देयर ओन जर्नी. हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए. नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, देखो जो जहां तक अंडरपेड का सवाल है, अंडरपेड में उस चीज को कहता हूँ जहां आदमी की जरूरत भी मीट नहीं हो पा रही. और एक यंग बच्चा जब वकालत में आता है, ये सीनियर की ड्यूटी है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सके. अगर वो उतने पैसे के बाद भी ग्रज करता है तो वो उसकी गलती है.
बट आप उसको उतना तो दीजिए ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। और जो एक हर इंसान की एक एस्पिरेशन होती है कि अब मैं कमाने लगा हूं, अब मुझे अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं लेना, तो एटलीस्ट उस लेवल तक ले जाने की जिम्मेवारी हम सीनियर्स की है, उस बच्चे की नहीं है। उस बच्चे की गलती नहीं है, वो तो बेचारा अभी सीखने आया है, उसके पोटेंशियल के हिसाब से उसको पे करना चाहिए। तो दैट्स माय टेक ऑन थिंग्स एंड आई डोंट नो हाउ फार इट इज करेक्ट। अब इस दूसरे सवाल पर, अब आप एक थर्ड जनरेशन लॉयर है मेरे ख्याल से, तो सर मैंने आपको कहीं कहते हुए सुना था, जैसे यू स्टार्टेड योर प्रैक्टिस विद मिस्टर रामास्वामी, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सर तो मैंने क्या था आपको कहते हुए सुना था कि लाइक दिस जनरेशनल लॉयर्स को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिलता है, देन दे हैव टू परफॉर्म बाय देमसेल्व्स। सो बट उस प्लेटफॉर्म तक आने के लिए जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होता है, अ जनरेशनल लॉयर हैज अ चेम्बर ऑफ इट्स ओन, क्लाइंट्स ऑफ प्रीवियस जनरेशन जो उनके फादर के साथ थे। तो सर हमारे लिए मतलब इन शॉर्ट ये जनरेशनल फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के साथ ऐसा हो जाता है कि जो मतलब जहाँ से आपका स्ट्रगल शुरू होता है वहाँ पे एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर के सपने पूरे हो जाते हैं, एक चेम्बर का, एक क्लाइंटेल का। तो सो ये थोड़ा अनफेयर नहीं होता, मतलब उनको थोड़ा एक स्केल अप मिल जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या फर्स्ट जनरेशन इन द सेम फील्ड सिर्फ वकालत में है? हर जगह। एक क्रिकेटर का बच्चा जरूरी तो नहीं उतना सक्सेसफुल बन जाए। यस सर। तो अल्टीमेटली एज यू सेड कि एक प्लेटफॉर्म मिलता है। यस। वो प्लेटफॉर्म ये मिलता है कि भाई तेरे को लॉन्च करने के लिए, एक फिल्म स्टार का बच्चा को लॉन्च करने के लिए वो उसके लिए फिल्म तो बना देगा। अगर उसकी फिल्म चली ही नहीं तो कौन याद करेगा उसे? फिर या तो वो एक्टिंग से डायरेक्टरशिप में आ जाएगा, या प्रोडक्शन में चला जाएगा, या वो छोटे मोटे एड रोल्स करके या इधर उधर ही विदर अवे हो जाएगा। हर जगह यही चीज होती है। अल्टीमेटली इट इज द क्वालिटी एंड द टैलेंट दैट मैटर्स। आपको परफॉर्म करने के लिए एक स्टेज बन जाता है, बट परफॉर्म तो आपको ही करना पड़ता है। मिस्टर रामास्वामी वॉज दैट वे अ वेरी ग्रेट टीचर। ही वुड ऑलवेज से कि even in this profession there are ups and downs. For the best of lawyers also there will be a period of lull, a period of decline, or somewhere where he'll feel stagnated. Then don't lose your elements. अपने आप पे तो भरोसा करो. Have faith in yourself. If you have faith in yourself, then there is no stopping you. और यही एक फर्स्ट जनरेशन हो या सेकंड जनरेशन हो या थर्ड जनरेशन हो, आप कहते हो एक थर्ड जनरेशन होने की वजह से एक अनफेयरनेस है। मैं दूसरी तरफ से देखता हूँ, द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन इज कि जो एक बाहर वाला मुझे देख रहा है वो मुझे कंपेयर करता है मेरी पिछली 2 जनरेशन से। हाउ फेयर इज इट? कैन एट द फर्स्ट डे आई आर्ग्यू लाइक माई फादर और माई ग्रैंडफादर? कैन आई बी एज गुड एज देम? फॉर 10 years यू कीप ऑन जजिंग मी। अरे भाई इसके फादर तो ऐसे थे, ये इसकी तो आवाज में दम ही नहीं है। हिज फादर यूज्ड टू रोर इन कोर्ट्स, his grandfather, the halls used to resound with his sound. और इसमें तो ऐसा आवाज में दम ही नहीं है, मजा ही नहीं आता। Is it fair on me? नहीं सर। तो same is the situation. When you have some positives, some benefits, you have certain other responsibilities also. ना मैं उनके नाम के खिलाफ कुछ कर सकता, ना so it is, if you get the benefit of a name, you have the responsibility on your shoulders also. And the public is viewing you with that yardstick, not as a first generation lawyer. फर्स्ट जनरेशन लॉयर की गलती को आप माफ कर दे, अरे बेचारा भी नया है, ऐसे सीख ही रहा है। और हमारे कहते हैं इसके तो खून में है, ये कैसे गलती कर सकता है? आपने कभी ऐसी बात सुनी है सर जब आप आर्ग्यू कर रहे थे इनिशियल इयर्स में, कि जैसा आपने कहा कि बहुत सुनी है। तो और मैं इसीलिए एग्जांपल देता हूँ कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। मैं तो मिस्टर रामास्वामी के यहाँ था, तो वहां पे ये जज किया जाता था, अरे ये उनका बेटा है, ये तो इसमें वो दम नहीं है। अरे भाई अभी आया हूँ, अभी तो सीख ही रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं। हमारे को लॉ फैकल्टी में आपने 15 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ा दिए, तो मैंने कोई पूरे 368 थोड़ी पढ़ लिए थे। यस सर। तो दीज आर थिंग्स व्हिच वी यूज्ड टू हियर एवरी डे। तो सर वो कॉन्फिडेंस में थोड़ा लल आता था आपके जब ये सब बात? आई वुडंट से कॉन्फिडेंस में लल आता था, मगर हाँ ये जरूर है कि एक बारी को अपने आप को मतलब कोई भी पिटीशन हम ड्राफ्ट भी करते थे ना, तो मैं 2 बारी खुद पढ़ता था कि भाई कहीं गलती ना हो जाए। कंपैरिजन विद योर ओन पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स और पीपल हु आर इन द प्रोफेशन बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम,
फॉर दोज हु आर नॉट द फर्स्ट जनरेशन, फॉर फर्स्ट जनरेशन तो हर चीज ही यूनिक है, सुई जेनरस है वो तो। बेसिकली हमें सब अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। हमें काम पे ध्यान देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, काम को पूरे डिलीजेंटली करना चाहिए, yes. उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एंड नॉट टू फॉल टू टेम्पटेशंस, बिकॉज इस प्रोफेशन में टेम्पटेशंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक लाइफ से आप डील करते हो तो आप टेम्पटेशंस पे भी जा सकते। टेम्पटेशन हर किस्म की है इस प्रोफेशन में। इफ आई नीड टू स्पेल इट आउट, देखो आप झूठ बोल के भी कमा सकते हो, क्लाइंट को गुमराह करना, क्लाइंट तो आपसे समझने आया है ना, क्लाइंट को गुमराह भी करते हैं। तो बार काउंसिल में इतने केसेस होते हैं, वो इसी तरह की कंप्लेंटें जाती हैं। आप एजेंसीज के नाम के पैसे ले लेते हो, जबकि उनसे डील कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या मतलब है आपका? आप लॉयर हो, लॉयर ही रहो। अब अगर हम डॉक्टर को इल्जाम लगाते हैं ना कि डॉक्टरों पे कि जी इसने मेरे को ना 100 टेस्ट फालतू के बता दिए, जरूरत थी नहीं। सिमिलरली जरूरत नहीं होती, आपने पिटिशन डाल दी फालतू की, तो हाउ फार आर यू राइट? तो इससे बातें हैं सब फालतू की पिटिशन से। पेंडेंसी ऑफ द केसेस भी सर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जुडिशरी में। तो आई थिंक करोर्स ऑफ करोर्स केसेस आर पेंडिंग इन द जुडिशरी, इन द हायर कोर्ट, इन द ट्रायल कोर्ट्स, एवरीवेयर सर। आई बिलीव अभी किसी एक उसमें पेंडेंसी ऑफ केसेस के ऊपर के भाई almost 5 crore cases are pending in the Indian courts. See, I do not know फजल, 2-3 साल पहले एक मैंने इंटरव्यू में ये बात बोली थी, एक वेबिनार टाइप का सही था, उसमें I said we keep blaming the system, the judiciary, but why is everybody forgetting that nearly 35% of the seats are still unfilled? The judicial officers are not there. So if you don't give the infrastructure, you are basically, आपने 50% काम एक्स्ट्रा दे रखा है, लोड दे रखा है, जो आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ से ज्यादा। जो 4 लोगों का काम है आप 2 से करवा रहे हो, तो आप खुद ही सोचो कि वो कब तक ह्यूमनली कर सकता है। इवन द बेस्ट ऑफ जजेस विल फाइंड इट डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कहता कि दैट द जजेस आर जस्टिफाइड इन द कीपिंग द मैटर्स पेंडिंग, बट फॉर दैट ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि कोई ना कोई, देखो एक पार्टी को फायदा होता है केस का एक्सटेंड होने में, तो वो पार्टी इस चक्कर में लगी रहती है केस आगे की डेट जाए, और एक पार्टी लगी होती है कि केस होए। तो ये दिक्कत है और इसका सिस्टमिक इलाज होना चाहिए। ये शूट करना बार बार कि जी वर्किंग डेज बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, these are no, they don't take us anywhere. In fact, since you do research when you do podcasts, yes sir, sometimes when you get time, yes, you check out our High Court and Supreme Court works the second highest in the world. The number of days, working days of our courts is second highest in the world. But उसमें कहीं कोई उनको इस चीज की एक्वलेट नहीं दे रहा कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप दुनिया में सेकंड हाईएस्ट वर्किंग डेज हैं आपके। हेयर इट इज द पीपल हु हैव मेड इट इन सच अ फैशन, क्योंकि हमारे यहाँ जब एग्जीक्यूटिव फेल करती है तब आप कोर्ट्स की तरफ रश करते हो। अगर एग्जीक्यूटिव अपना रोल कर दे तो लोगों को कोर्ट्स की तरफ रश नहीं करना पड़ता। आप खुद ही देखिए कि आज एक कॉन्फिडेंस क्या है हमारे में, whatever 140 crores we may be, but the basic confidence is कि if you don't treat me well, I'll take you to court. वो कॉन्फिडेंस इसीलिए आ रहा है ना क्योंकि हम अपने जुडिशियल सिस्टम की तरफ भरोसा करते हैं। ठीक है, सिनिकली इफ वी सी वी से कि भाई बहुत पेंडेंसी है। पेंडेंसी किसने क्रिएट करी है? करी भी तो हम ही लोगों ने है। तो रादर देन लुकिंग इनसाइड वी आर ओनली ब्लेमिंग द अदर। सर लेकिन एक यूनिक प्रॉब्लम जो मैं भी हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने एक जो देखी अपने पर्सनल केसेस में, जैसे एक होता है जैसे रोस्टर चेंज होता है और एक मैटर पे जैसे मान लीजिए जज ने पार्ट थर्ड मार्क नहीं किया, तो मैटर अगर आर्ग्यूमेंट्स आधी हो गए तो वो फिर दूसरे जज के पास जाते हैं और फिर वो वापस शुरू हो जाते हैं, वो मैटर शुरू से आगे। आई एक्सेप्ट दैट इज अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। दैट इज बिकॉज जो डेट मिलती है वो थोड़ी आगे चली जाती है। यस सर। और उस बीच में रोस्टर के चेंज होने की वो होती है, चांसेस बहुत होते हैं। मगर और दिल्ली हाई कोर्ट में पिक्यूलियरली पिछले 3 सालों में पोस्ट कोविड रोस्टर्स ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज हुए हैं। यस सर। विच इज अनलाइक व्हाट वी फेस्ड व्हेन वी केम इनटू दिस प्रोफेशन। हमें ये पता था
कि सिर्फ समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस के बाद रोस्टर चेंज होता था और बहुत से बहुत कुछ आता था, तो बहुत एक माइनर सा चेंज आता था अगर कोई एक जज रिटायर हो रहा है और एक आधा कोई अपॉइंट होता था, तो बहुत माइनर चेंजेस होते थे रोस्टर में. बट यू राइट कि ये प्रॉब्लम आती है, मगर वहां पे मेरा अपना ये मानना है कि विद एक्सपीरियंस 90% ऑफ द लॉयर्स अंडरस्टैंड, और वो जैसे ही उनकी बहस आधी खत्म हो गई है, जैसे पिटिशनर ने कर लिया, प्लेंटिफ ने कर लिया, और डिफेंस की रह गई है, डिफेंडेंट की रह गई है, रिस्पोंडेंट की रह गई है, तो उस स्टेज पे आके वो खुद ही बोलने लगते हैं सर इसको मार्क कर लो. पार्ट थर्ड रह भी जाते होंगे मार्क करना, या कई बार जजेस को फील होता है अरे ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है. तो वो कई बारी जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है वो नेक्स्ट डेट तक तो नहीं चेंज होता. नेक्स्ट डेट पे चाहे बाई चांस अगर वो स्किप हो जाती है तब वो पार्ट थर्ड लिखना रह जाता है और फिर वो वापस शुरू हो जाता है. वो थोड़ा बहुत जरूर हाँ पिंच करता है, वकील को भी करता है, वकील को भी करता है. अच्छी बात है ना, सो इसको फिर वापस वही पे नहीं फजल, ये आप सिर्फ सीनियर्स की तरफ मत देखो जो पर पेशी ले रहे हैं. 80% वकील तो पूरे केस की फीस लेके बेचारा चलता है. उसके लिए तो उसे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, जद्दोजहद पूरी दोबारा से शुरू होती है, क्योंकि पैसे तो उसने बेचारे ने मुकदमे के ले लिए और क्लाइंट कहता भाई मैं तेरे को पैसे दे चुका. अच्छा, तो मतलब उसकी मेहनत डबल हो जाती है. पर मतलब डिस्टिंक्शन है, मतलब इट्स नॉट ऑल वाइट एंड ब्लैक. आई वुड से के दोज हु आर चार्जिंग पर अपीयरेंस वो तो खुश हो जाते हैं, बट दोज हु आर नॉट वो दुखी रहते हैं. तो एक तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में ये भी देखने को मिला, रोस्टर तो चेंज होता ही होता है. जजेस भी सब बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्स, अभी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जजेस ट्रांसफर हुए हैं. तो इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है कोर्ट की फंक्शनिंग पे, या ये क्या पड़ता है फजल? I don't know how the Supreme Court looks at things और how the government looks at things. But देखिए, आप एक कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आप एक कोर्ट में जज बनते हैं, उस कोर्ट की आपको फंक्शनिंग का पता होता है, आप लोगों को पहचानते हैं, समझते हैं. किसी की दिक्कत आती है तो आपको पता होता है कि ये जेन्युइनली दिक्कत में है या ये क्रिएट कर रहा है, बेकार की बात कर रहा है. सिमिलरली आपको मैटर्स का भी एक अंदाजा सा होता है कि इस तरह के मैटर्स इस तरह से निपटाए जाएंगे. तो व्हाट दिस इज दैट द प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट इज एक्चुअली द लॉ फॉर दैट कोर्ट. तो एक पहिया घूमता रहता है, एक रूटीन बन जाता है उस चीज का. बट व्हेन यू सडनली शफल पीपल, अभी तक क्या होता था कि आप सिर्फ चीफ जस्टिस आता था बाहर से. चीफ जस्टिस जब बाहर से आता था तो वो अपने ब्रदर जजेस से और स्पेशली J1 से J2 से सलाह ले लेता था कि भाई ऐसे माहौल में ऐसी सिचुएशन में क्या करें, बिकॉज दे आर सीनियर जजेस. हाँ सही. अब दिल्ली हाई कोर्ट बड़ी पिक्यूलियरली प्लेस्ड है इस टाइम पे कि हमारे J1 J2 में भी एक जज अदर देन द चीफ जस्टिस जो है वो बाहर से हैं. यस. तो जो इल्म होना चाहिए आपको, कि एक अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ की प्रैक्टिस क्या है, वो समझने में भी तो टाइम लगता है. तो एक थोड़ा सा कोर्ट की फंक्शनिंग पे सेटबैक आ जाता है. दूसरा इसका एक इम्पैक्ट जो मैं समझता हूँ, एंड दिस इज माय पर्सनल व्यू, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ व्यू ऑफ a large number of people or not, I don't know, but people have voiced it, and that's why I am saying it. जब आप बाहर से जजेस ले आते हो तो आपने हमारे हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो एक सीट कम कर दी. तो हमारे यहाँ जो एक यंग एस्पिरेंट है उसके ऑड्स बढ़ गए. हाँ, अगर 6 सीटें थी तो अब 4 रह गई, और 4 रह गई तो जो 40 आदमियों को बस 6 पे फाइट करते हैं वो 40 आदमी 4 पे फाइट करेंगे. तो जो वहाँ जहाँ 1:7 का ऑड था वहाँ 1:10 का ऑड हो जाएगा. तो ये दिक्कत, और इसमें जो बेचारे ट्रांसफर होके आए हैं उनका कोई वो नहीं है गलती, क्योंकि उनको तो वो तो बेचारे दे आर डूइंग अ जॉब, दे आर ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड दे आर ड्यूटी बाउंड टू गेट ट्रांसफर्ड वेरेवर दे आर, they will function there as judges. Not their fault, but it is the impact, as you said. What is the impact? Impact ये है कि हमारे हाई कोर्ट की सीटें उतनी कम हो गई. बेसिकली आप अंडरमाइन कर देते हैं उस दिल्ली हाई कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को जब आप बाहर से जजेस लाते हैं. मैं ये नहीं कहता क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करते हैं, मैं ये कहता हूँ आपने एक पूरा शेकअप कर दिया, एक जो पैटर्न पे चल रहा है. आपके सीनियर जजेस जब बाहर से आ जाते हैं तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो है विच कंप्राइजेस ऑफ द सीनियर जजेस,
वो अनअवेयर है ऑफ दिल्ली की पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स। क्या उसकी प्रॉब्लम्स है? तो जब जो पिक्यूलियरिटी होती है किसी लोकल जगह की, अब आप दिल्ली के जज को किसी को से बॉम्बे में, या बॉम्बे तो चलो शहर फिर भी लोगों ने देखा हुआ है, मतलब जाते रहते दिल्ली, बम्बई, झारखंड, मतलब आप किसी और हाई कोर्ट में आप सीनियर उसमें डाल दोगे और उससे सलाह मांगोगे, या किसी की पिटिशन को या किसी ग्रीवांस को या किसी इशू को हैंडल करना है, तो हैंडल करने के लिए वो बेचारा तो किसी और से ही कंसल्ट करेगा ना। हाँ। क्योंकि उसको तो पिक्यूलियरिटीज का पता ही नहीं है। यस, ये तो इम्पैक्ट की बात हो गई। अब आते हैं इसका रीजन क्या होता है, लाइक जजेस क्यों ट्रांसफर होते हैं, लाइक उसका कोई स्पेसिफिक रीजन होता है, नहीं होता है, क्या क्या थॉट प्रोसेस? देखिए, ये आंसर तो फजल मेरे ख्याल से सिर्फ कोलिजियम दे सकता है कि उनके दिमाग में क्या घूमी कि उन्होंने ट्रांसफर किया। यस, कई बारी जो सुनने में आता है, and this is all hearsay, this is not my view, because I am not privy to any of their discussions, यस, and that is कि भाई वो किसी जगह को जो है उसका थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करना चाहते हैं, या वहाँ चाहते हैं कि जी जैसे सचदेवा साहब को आपने भेजा मध्य प्रदेश, अब सचदेवा साहब SJ1 गए, कैद साहब वहाँ चीफ बन के आए, यस, रिटायर हो गए, सचदेवा साहब फिर भी वहीं रहे, उन्हें वहीं चीफ बना दिया। तो आपने बेसिकली क्या किया, उनको मध्य प्रदेश की डायनामिक्स समझने के लिए आपने उनको वहां ट्रांसफर कर दिया। यस, ये तो समझ में आता है कि आपने एक आदमी को वहां का चीफ बनाना था, तो उन्होंने कहा चलो तुझे पहले भेज देते हैं थोड़ा सा, और फिर यस, आप बन गए। बट आप दूसरी तरफ हमारे दूसरे जज को देखिए, जिनको ट्रांसफर किया उनको वापस आप यहाँ ले आए फिर। अरे भाई उन्हें वहां क्यों भेजा था, व्हाई डिड यू शिफ्ट, व्हाट वाज द रीजनिंग? तो उसका कोई आंसर नहीं है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, ये हम सब अटखेलियां लगा रहे हैं कि क्या सोचा होगा, क्या सोचा है, मगर अब जिस वॉल्यूम में ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं 12-12, 13-13 ऑल ओवर द कंट्री, 12-13 ट्रांसफर आउट ऑफ 700 जजेस मे नॉट साउंड वेरी बिग, बट एट व्हाट पोजीशन आर दे? यस, तो उससे समझ में नहीं आता। आई एम श्योर कॉलेजियम ने कुछ ना कुछ दिमाग लगाया होगा क्या करना चाह रहे हैं, या उनकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है जिसको वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आज से स्टेप्स ले रहे हैं। तो सिंस इट इज नॉट आउट इन द ओपन, आई कांट से। तो एक थोड़ा लाइटर नोट पे आते हैं। पहले हमने सर अंडर पेमेंट ऑफ यंग लिटिगेंट्स की बात की, लॉयर्स, यंग लॉयर्स की। सर तो सर आप जैसे एलसीज अपॉइंट करता है, एमिकस अपॉइंट करता है कोर्ट, सर वो किस बेसिस पे कोर्ट अपॉइंट करता है? फजल तुम लोगों ने तो पता नहीं देखा है नहीं देखा, हमारे टाइम पे क्या होता था, हम जब जूनियर्स थे, जो यंग लड़का खड़ा हुआ होता था कोर्ट में, यस सर, उसी को एलसी अपॉइंट कर देते थे कि भाई जा अभी यहीं से जा, यस सर, विजिट करके आ, जो भी जगह होती थी, जो भी कमीशन होती थी, लोकल कमीशन करने। उसके बाद थोड़ी बार बढ़ गई तो एक लिस्ट बनने लग गई। In my tenures as president, both my secretaries, Abhijat as well as Sandeep Sharma, they used to see के कौन कौन बच्चे किसको मदद चाहिए, और वो जैसे हमारे पास बार में मदद के लिए आते थे ना कि भाई वी नीड हेल्प, वी नीड दिस, वी नीड दैट, किसी को मेडिकल की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, तो दे यूज्ड टू कंपाइल दैट लिस्ट, एंड वी हैड डिसाइडेड इन आवर कमिटी कि भाई ऐसे लोगों को जिनकी बार एज एन एसोसिएशन मे नॉट बी एबल टू हेल्प आउट फुल्ली, बिकॉज वी हैव आवर लिमिट्स to what we can extend as help, because ultimately we are custodians of the funds of the members. तो members का ही तो है ना कॉर्पस। yes sir, भाई अल्टीमेटली मेंबर्स पैसे दे रहे हैं, तो हम उसमें से बांट तो नहीं सकते ना लार्जेस्ट। yes, तो हम लोग क्या करते थे, हमने डिसाइड किया था कि प्रिंसिपली कि उन लोगों के जिनकी मदद के लिए आए हैं ना, उनके नाम देख के कि भाई कौन सा है जो कर सकता है, एबल बॉडीड, थोड़ी सी इंटेलिजेंस जो भी है, उनके नाम जाके जजेस को दे आते थे। बेसिकली DHCBA में जाके देते थे ना, देन वो कंपाइल जाके कंपाइल करके दे देते थे। तो एटलीस्ट फॉर द 5.5 years that I was on the helm, I and my secretaries and my other executive committee members were very clear. सब जिनके पास भी कोई आ गया कि भाई इसकी हेल्प कर दो, उसकी हेल्प कर दो, तो भाई सर इनकी एक लिस्ट बना दो, वो लिस्ट बार एसोसिएशन की तरफ से चली जाती थी, एंड जजेस यूज्ड टू ऑनर इट। और उस तरह से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 200-300 लोगों की मदद करी। लेकिन अब मतलब अब ये सिस्टम है? देखिए एक लिस्ट तो है, एंड आई बिलीव के वो लिस्ट बनती रहती है, अपडेट होती रहती है, बट ये एज आई इनिशियली सेड, अब नंबर इतना बढ़ गया है कि अगर मेरे ग्रुप के 10 लोगों में
किसी को नहीं मिला तो हमारे हिसाब से किसी को नहीं मिल रहा, किसी ना किसी को तो मिल ही रहा होगा। यस सर। बट 500 में से हम 10 हैं, पहले हम 50 में से 10 होते तो हमें पता चल जाता था कि भाई सबको किसको मिल गया, अरे मतलब हर जगह किसी ना किसी को रैंडमली मिल रहा है तो पता चल जाता था। अब इतना बड़ा नंबर है कि वन एंड डजंट नो द अदर एंड, तो पता नहीं है कि मिला है नहीं मिला, बट आई बिलीव दैट दे फॉलो दैट लिस्ट। एक है जजिस के पास लिस्ट होती है। अब तो आई बिलीव सर DHCB is the largest bar association in Asia यस एब्सोल्युटली, with 40,000 members मोर देन 40 तो हमारे टाइम पे ही थे जब हम 2024 में। 2025 में 21 मार्च व्हेन वी डेमिटेड ऑफिस, यस सर। तो 40,000 क्रॉस कर गया था नंबर। ओह, तो सर इतने लोगों को मैनेज करना, स्पेशली आपके टाइम में तो पैंडेमिक भी आ गया था। दैट वाज इन माय फर्स्ट टेन्योर। यस सर, तो वो कैसा थोड़ा चैलेंजिंग टाइम था क्योंकि आई थिंक Fazal, I always say every challenging time is also a time of opportunity. It's how you look at it. पर्सपेक्टिव आपका ठीक होना चाहिए। हाँ दिक्कत थी, माई ओन पेरेंट्स वर इन द हॉस्पिटल, बट एट दैट टाइम दैट डिड नॉट मीन कि भाई लोगों की मदद करना बंद कर दो, वो तो करनी पड़ेगी ना। पैंडेमिक के टाइम पे अभिजात यूज्ड टू बी विद मी, सेक्रेटरी था, जस्टिस मनोज जैन यूज्ड टू बी द रजिस्ट्रार। हम 3-4 जने ही होते थे, पूरी हाई कोर्ट में घूम रहे होते थे कि क्या क्या कराना है, क्या क्या नहीं कराना है। बट देन एज एन अपॉर्चुनिटी वी टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, दैट चैलेंज। हमने वैक्सीनेशंस कराई। दिल्ली हाई कोर्ट वाज डिक्लेयर्ड एज अ वैक्सीनेशन सेंटर अंडर द कोविन ऐप। आप किसी भी हाई कोर्ट ने पूरी इंडिया में इतनी वैक्सीनेशंस नहीं कराई जितनी हमने कराई, और इन हाई कोर्ट, क्योंकि उससे ज्यादा क्लीन और स्पेसी एनवायरन कहाँ मिल सकता था। नहीं, हमारे पास पूरा हॉल होता था, एंड आवर चीफ जस्टिस थे जस्टिस पटेल, he and Justice Manoj Jain as he then was as the registrar, उन्होंने मिनटों में हमारे सारे चीजें कराई। My executive is to be given the credit, ठीक है, people forget बड़ी जल्दी, यहाँ human memory is short। धूप में खड़े होते थे। One of my members, executive, his entire family was in the hospital, yet he came, stood there so that things could be organized peacefully, smoothly and peacefully things could be done। The staff जो ठीक था वो आया, एंड मेंबर्स की तो खैर मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट के मेंबर्स, दिल इतना बड़ा है, इन वन वॉइस एवरी वन कॉन्ट्रीब्यूटेड। सिर्फ एक बारी मैंने उस पे फेसबुक पे लिखा दैट काइंडली कंट्रीब्यूट फॉर दिस, एंड वी वर नॉट रिक्वायर्ड टू डिग इनटू द बार फंड्स, we did it all from contributions. Some were so charitable that they gave lakhs of rupees. There were people who came from outside, जो अपने सिर्फ स्टाफ को या बच्चों को जिनको नहीं करा पा रहे थे, कहीं वो वैक्सीनेशन करा गए, वो वहीं के वहीं मेंबर्स जो हैं चेक साइन करके चले गए। हमने कहा हम पैसे नहीं ले रहे हैं, कहते यस दिस इज नॉट फॉर दैट, बट ये आगे वालों के लिए हैं। लेडी एडवोकेट हु हैड लॉस्ट हर फादर इन कोविड, उनकी मेमोरी में उन्होंने 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन कैंप को स्पॉन्सर किया। तो चैलेंजिंग टाइम तो पूरी कंट्री के लिए था, पूरी दुनिया के लिए था। बट उसमें या तो आप अपने आप को क्लोज कर दो और सोचो कि मैं किसी तरह बच के इस दौर को निकल जाऊं, या आप उसको हेड ऑन ले लो और देखो कि भाई क्या क्या कर सकते हो। सर इससे पता चलता है, मतलब आपकी बातों से, कि दिल्ली हाई कोर्ट आपको लगता है बाकी हाई कोर्ट से डिफरेंट है, वाइब्रेंट है, क्या उसे डिफरेंट बनाता है बाकी हाई कोर्ट से अगर डिफरेंट है तो? एक एसोसिएशन इज नो डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स। यहाँ मेंबर्स ही डिफरेंट है। द फीलिंग, द बॉनहोमी, जो कमराडरी यहाँ है कहीं नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन है लॉयर्स की है, लॉयर्स विट करके, लॉयर्स विट ही है शायद, ये लॉयर्स इनिशिएटिव कुछ ऐसे, लॉयर्स इनिशिएटिव। उनमें कुछ लोगों ने टेलीफोन कर करके सीनियरों से, जिस किसी के बच्चे की दिक्कत, स्कूल की फीस की दिक्कत, पैसे कलेक्ट कर करके, लेडीज को कहीं दिक्कत आ रही है उनको पहुंचाना। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि मेरी एसोसिएशन से ही हो रहा था, ये छोटे छोटे ग्रुप्स ये अपने आप में सक्षम बन गए थे। One of the members of the lawyers initiative then became, and that's why he succeeded in contesting the elections and won in the next executive, क्योंकि इतने लोगों की मदद करी थी उन्होंने। तो लोग ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो फील ऑब्लाइज्ड करते हैं। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट की मैं जो बात कह रहा हूँ वो यही है कि दिल्ली हाई कोर्ट इसलिए फर्क है क्योंकि उसके मेंबर्स की सोच फर्क है। उनकी मेंबर्स की सोच प्रोग्रेसिव है। हमारे हाई कोर्ट में एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, बॉनहोमी बहुत है, और कैमराडरी इतनी है कि हमें किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं होती। हम आपस में ही अपने लोगों से कह कहा के सारा काम करा लेते हैं, चाहे हमारा ASG हो, चाहे हमारे सीनियर्स हो, चाहे हमारे जूनियर एडवोकेट्स हों, यंगर लॉट जो बेचारों के पास
काम नहीं भी था, उन्होंने ये उफ नहीं करी कि प्रॉब्लम है कुछ। यस अगर कोई प्रॉब्लम थी एग्जीक्यूटिव से करके जहां तक कर सकते थे करी। एंड दैट्स व्हाई प्लीज रिकॉल द टाइम मिडनाइट बेंचेस बैठी थी ना, यस सर डिवीजन बेंच बैठी थी ना मिडनाइट, कि ताकि लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा सके। किसी और हाई कोर्ट की सुनी? यस सर। सर लेकिन अब जैसे आप थोड़ा आप पे आते हैं सर, अब जैसे आप वर्क लाइफ की बात करते हैं, यू हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द बार, यू आर अ सीनियर एडवोकेट, तो आपका शेड्यूल एज इन क्या रहता है एज अ? मैं फजल बहुत ही जिसे कहते हैं ना लेजी टाइप का आदमी हूँ, कि जब मैं रिलैक्स करता हूँ ना तो मैं बिल्कुल काम करने के दूर दूर तक मूड में नहीं होता। यस सर। और काम के टाइम पे मैं जल्दी से जल्दी काम को निपटाने के मूड में रहता हूँ, बट काम मुकम्मल करना चाहता हूँ। आधे में छोड़ना मुझे पसंद नहीं है, और जो करो वो शिद्दत से करो, वरना मत करो। तो आजकल एक चीज होती है वर्क लाइफ बैलेंस, वो कैसे? नहीं, वो चीज तो वर्क लाइफ बैलेंस लोग आज तो अंग्रेजी में आप 4 वर्ड्स कॉइन कर लो, बट आप याद करो ये तो हमारे जमाने शुरू से ऐसे ही थे। इफ यू गो टू ओल्ड दिल्ली, आज भी जो संडे है वहाँ वो आपको इतना रिलैक्स्ड मिलेगा ना। यस सर। कोई सब तफरी में है। यस सर, वो तो है। किसी को तोड़ भाग नहीं लगी हुई, किसी को मारा मारी नहीं हो रही होती। तो हम तो वहीं से पैदा होके बड़े और सीख के आए हैं। तो मेरा आज भी जो संडे है वो बड़ा रिलैक्स्ड होता है। और सिर्फ कोई बहुत ही मैं काम बिल्कुल खत्म नहीं कर पाया या कोई अर्जेंट एकदम आ गया, अदरवाइज संडे इज माई डे, इट्स मी टाइम, मी एंड माई फैमिली, बस। सर जब आप हर रोज सुबह कोर्ट में जाते हैं तो आपका थॉट क्या होता है, थॉट प्रोसेस? व्हाट डू यू वांट टू हियर कि आज जाके किसी ना किसी के साथ लड़ाई करनी है? नहीं सर, मतलब कुछ होता है ना कि सर सुबह जैसे लोग 10 साढ़े 10 बजे भाग रहे होते हैं एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट। देखो वो तो आई एम ऑल्सो लाइक एनी अदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। यस सर। कि वो तो मारा मारी होती है, घड़ी देख के भागते रहो बस। नहीं सर, बेसिकली मैं एक क्वेश्चन पे आता है, जैसे अब हमारी पर्सनल लाइफ भी होती है, उसमें कुछ चल रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू गो इन द कोर्ट एंड फाइट फॉर समवन एल्सेस पर्सनल लाइफ, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होता है। लेकिन इधर हमारी लाइफ में भी कुछ चल रहा होता है सर, वो दोनों को मतलब फिर उस सिचुएशन में फजल हर इंसान कर ही लेता है, आई एम नो एक्सेप्शन। यस। और जो नहीं करता वो कहीं ना कहीं अपने अंदर बीमारियों का घर कर लेता है। टच वुड, मैं बिकॉज द वे माई फैमिली वॉज, द वे माई लाइफ हैज बीन, मैं किसी मारा मारी में नहीं भागता, मैं किसी होड़ में नहीं हूँ किसी के साथ। मेरी होड़ अपने आप से है बस। आई जस्ट वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ so that tomorrow I may be able to do better. Okay. And personally my upbringing has been such कि मुझे शुरू से सिखाया गया है, which is more of a fate oriented thing, कर्म oriented thing, कि भाई जो तेरा destined है ना वो तेरे को मिलेगा। तो improve yourself, and if God has given you a talent, कोई हुनर है तुम्हारे पास, कोई शफा है तुम्हारी, तो उसका इस्तेमाल दूसरों के लिए करो, अपने लिए मत करो। तो that helps me a lot in keeping my mental, balancing my mental peace. Okay, if God has given me a talent to do something well, then I must be able to do it for the betterment of people. तो अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इलाज करूँ, अगर मैं वकील हूँ तो मैं मुकदमा लड़ूँ, और ढंग से लड़ूँ लोगों की भलाई के लिए। सर आप एक क्वेश्चन, because you, I think you have been more than 3 decades into the profession. So सर एक अगर आपसे कोई सवाल पूछे, why did you become a lawyer? Because सर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, and there's a story also, आप स्टीफेंस जाने वाले थे, फिर आप... नहीं, स्टीफेंस में था मैं। Yes, आप स्टीफेंस। आफ्टर स्टीफेंस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसके लिए हम लोग देख रहे थे, एंड you got unwell. yes, and a very dear friend of mine who is also now a senior advocate, विवेक कोहली सर। हाँ, तो विवेक और मैं, ये था कि भाई अपने उसकी बाइक पे वो आता था, Yes, दरियागंज से मुझे पिकअप करता था, यूज्ड टू गो टू द यूनिवर्सिटी, स्टीफेंस में वी वर टुगेदर। तो वहां से गुजर रहे थे लॉ फैकल्टी से, ने कहा यार इसमें अप्लाई करके देखें क्या? चल कर देते हैं अप्लाई, फिर देखते हैं। एंड देन बीमार पड़ गए, तो वो मेरे घर पे मुझे नोट्स दे के जाता था, बताता हुआ चला जाता। वो कहता कुछ नहीं है यार, इसमें लॉ तो यूं ही पास हो जाएगा ना, चलो फिर कर लेते हैं। उस वक्त से पहले हमारे पापा में बताते कि पहले ये कहा जाता था जो कुछ नहीं करता वो वकालत करता है,
तो उस टाइम पे, लेकिन अब तो सर बहुत सारे लोग लॉ ज्वाइन हाँ, अब तो दे आर ऑल ड्रिवन बिकॉज 5 साल की लॉ करने, हम तो ये था ना कि भाई चलो हमारे पास ग्रेजुएशन की एक डिग्री तो थी, हाँ अब तो आपकी डिग्री लॉ की है. हाँ, तो ये तो अच्छी बात है सर, बेसिकली अब ज्यादा लोग प्रोफेशन में आ रहे हैं तो। बट मुझे लगता है कि 5 साल की लॉ करने का मतलब है कि उस बच्चे का माइंड तभी से बना हुआ होना चाहिए कि मैंने वकालत करनी है. यस सर। और दैट्स वेयर योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन कि भाई तुम क्या सोच के वकालत में आए थे जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी वकालत चलेगी कैसे. यस सर। तो ये जो ये मशरूमिंग हो रही है हर जगह लॉ कॉलेजेस की, ये तो the authorities need to take a second look at it. यस सर, एक मेरा और क्वेश्चन होता है, जैसे अब लॉ स्कूल में जो पढ़ाई होती है और ये होती है सर, हमें कोई ये चीज फाइलिंग के बारे में कोई नहीं बताता है. That's what I'm saying. That's where यही मैंने बात तुम्हें शुरू में कही थी. This is where आपसे 5 साल 10 साल सीनियर आदमी आपका हैंड होल्डिंग करे. यस सर। अब क्या है, नंबर इतना ज्यादा हो गया है कि कितनों की हैंड होल्डिंग करेगा आदमी. यस सर। अब अगर 10 साल वाले वकील तो हैं से 5,000 और अब आ रहे हैं वकील 20,000, तो कौन करेगा हैंड होल्डिंग भाई. यस, लेकिन तो मेरा क्वेश्चन ये है बेसिकली, जैसे हम लॉ स्कूल्स में जाते हैं, हमें आईपीसी पढ़ा रहे, सीपीसी पढ़ा रहे हैं, वो तो सब बुक पढ़ के मतलब पढ़ सकते हैं, लेकिन सर फाइलिंग कोई नहीं बताता हमें. फजल, उसी के लिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा इनके करिकुलम्स में बदलाव आना जरूरी है. मैंने तो 1-2 बारी सजेशंस दिए थे, बट वो यू आर मैन हुज हैविंग अ लार्जर रीच, प्रोबेबली तुम लोग ये मैसेज दूर तक पहुंचा सको. लास्ट सेमेस्टर और द 9th सेमेस्टर और 10th सेमेस्टर, whichever they want, should be dedicated to a full 6 months with the lawyer's office. क्योंकि आप 1 महीने की इंटर्नशिप करने आते हो, 1 महीने में तो तारीख 1 महीने की पड़ती है. तो वो बेचारा क्या देखेगा, क्या सीखेगा. आज मैंने तैयार किया एक मुकदमा, मेरा सीनियर गया, उन्होंने जज साहब ने कह दिया नोटिस और तारीख मार दी 1 महीने के बाद की. तो उस बेचारे को यही नहीं पता चला कि जो उसने तैयार किया था सही किया था, गलत किया था, क्या किया था. तो ये 6 महीने वाला कुछ कॉलेजेस में है, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी में है कि लास्ट सेमेस्टर जो है वो 6 महीने का अब उन्होंने स्टार्ट किया है. लेकिन आई थिंक सर एक कॉलेजेस में होता है कि अटेंडेंस उन्हें पूरी चाहिए होती है 75. नहीं तो वो अटेंडेंस वहां से लो ना जो वकील के पास करी है उसने. yes, लेकिन कुछ बच्चे सब कभी कभार फेक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स भी बना लेते हैं. अब देखो ऐसे तो वो फिर चीटिंग करके भी तो पास होते हैं. यस सर. तो उन एक्सेप्शंस के बेसिस पे आप रूल तो नहीं चेंज कर सकते ना. यस, एक्सेप्शंस डोंट प्रूव द रूल और डिसप्रूव द रूल, बट एक्सेप्शंस जो अगर ऐसे हैं भी तो उन्हें अपनी किस्मत पे छोड़ दो ना भाई. तुम्हारी या उनकी अटेंडेंस रखो ही 9 सेमेस्टर के हिसाब से, उनकी 10वें सेमेस्टर को गिनो ही मत. आपने अटेंडेंस का जो लगाया है वो 9 सेमेस्टर तक गिन लो. यस सर. 10वां छोड़ दो. अटेंडेंस के लिए 10वें को उस पे रख दो कि भाई तू अपना जो नोट बना के देगा उसी पे तेरे नंबर बनेंगे. यस सर. तो उससे सर, क्योंकि मैं जब नया नया प्रोफेशन में आया था, मुझे नहीं पता फाइलिंग कैसे हो रही है, फिर फाइलिंग से स्क्रूटनी रिपोर्ट आ रही है. तुम तो ये बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं. मेरे को सब जब शुरू में आया मैं, तो मुझे सीनियर थे डैड के साथ, पहले थे मिस्टर सतीश टमटा. यस सर. ही इज अ सीनियर एडवोकेट नाउ. उनका पटियाला उसमें चेम्बर था, मैं उनके साथ चला गया. तो उन्होंने कहा जाके ना एलमद से जाए पता कर ले कि इस के मैटर में हुआ क्या. अब द टर्मिनोलॉजी एलमद आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं आती है. हाँ सर, नहीं डिफरेंट. रिकॉर्ड कीपर वर्ड तो समझ में आता है, बट एलमद वर्ड तो कभी सुनने में ही नहीं आता हमारे. अब मैंने उसको ठीक से सुना नहीं, मैं मिस्टर अहमद करके ढूंढता रहा मिस्टर अहमद को. अब मिस्टर अहमद कहाँ मिलेंगे, जब होंगे ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से आप. यस सर, सही बात है. मैं वापस गया, उन्होंने कहा नहीं कोर्ट के पीछे ही बैठते हैं. मैं फिर वापस गया, तब तक वहां के स्टाफ को समझ में आ गया कि ये कोई नया रंग रूट है, इसके समझ में कुछ नहीं आ रहा. यस सर. उन्हें क्या करना है तुम्हें. तो मैंने कहा जी वो मिस्टर अहमद से मिलना था, वो इस फलाने केस के बारे में. कहता अरे एलमद साहब वहां बैठते हैं. तब पता चला एलमद होता है. तो तुम अपनी बात करो, फाइलिंग की बात करो, मैं तो कह रहा हूँ हमें टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता. तो लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जो आपका जनरेशन का लॉयर जो प्रैक्टिस शुरू की थी तो और डिफिकल्ट है, बिकॉज अब तो कंप्यूटर्स आ गए, आईपैड्स आ गए, तो टाइपराइटर पे सर लिखना होता था. बिल्कुल नो मिस्टेक्स, करेक्शन कहाँ से होएगी. वो सब टाइपेक्स से निकालते थे, उंगली फंस जाती थी उसमें.
कि मैं थोड़ा यूज करता हूँ टाइपराइटर, तो मुझे पता है। तो इससे सर लेकिन डिलीजेंस सीखने को मिलती थी, हमारे पापा ये बताते हैं हमें। ना तो डिलीजेंस की फोकस आ जाता था यस सर, कि आप गलती करने की गुंजाइश ही नहीं है, यस सर, यू कांट गो बैक एंड रिकरेक्ट इट। यस सर, तो इसलिए जो फर्स्ट शॉट में निकलेगा वही ठीक निकलेगा। यस सर, तो बार बार आप सोच के बोलते थे डिक्टेशन। अब तो आपका वो ड्रैगन स्पीकर वो आ गया, लगाया आपने टट्टू उस पे बोलना शुरू कर Yes. दिया और वो इट स्टार्ट्स टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर, यस सर, स्क्रिप्ट आने लगती है उसकी। sir. तो हमारे टाइम पे तो वो शुरू भी नहीं हुआ था, Yes. सब बाद में आया है। तो हम बैठते थे वहीं पे बेंच पे बैठ के उसके साथ उसका टाइप कराते थे। अब सर चैट जीपीटी के बारे में आपने सुना? यार ये सारी चीजें मैंने खुद सिर्फ एक्सपेरिमेंट करी। हाँ, I don't know much about it, but I somehow feel that these are dangerous because as they used to talk about fire, कि fire can be used as well as abused. यस सर, Same is the situation here. अब एक टेम्पलेट तो बना के दे देगी वो चैट जीपीटी आपको, बट जो एक केस की नुआंस है वो कहाँ से लाओगे? वो तो ह्यूमन एलिमेंट है। और फिर उसको जो पेश करने का तरीका है, अगर वो सब मैकेनिकली होने लग जाएगा तो डिस्क्रिशन जो वर्ड है उसकी क्या रेलेवेंस रह जाएगी? मतलब आपको लगता है सर एआई क्या ह्यूमन को रिप्लेस कर पाएगा इन द फील्ड ऑफ लॉ एम पर्टिकुलरली? AI should and AI will only remain a tool in the hands of humans, क्योंकि अल्टीमेटली जिसने बनाया AI वो भी ह्यूमन है, एंड टू err is human. सर अगर आपके सामने कोई चैट जीपीटी के थ्रू काम करके लाए और आपको पता चले चैट जीपीटी के थ्रू है, मान लीजिए आपको कोई जूनियर लेके आए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरा रिएक्शन वो होगा जो इस पे नहीं आ सकता। अरे मैं छोटे मोटे नोट्स भी बनते हैं, कई बार ही बना के लाते हैं फाइलों के लिए, तो मेरी भाषा थोड़ी दिल्ली छह की हो जाती है, यस फिर तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग में नहीं जा सकती। यस सर। तो सर अब आप I personally feel law may be a science when it comes to dealing with things, but in understanding and in presenting, it's an art. that only humans can. Only you can understand it, only you can appreciate it. So मतलब according to you AI can't replace humans, it would remain a Should tool. never be allowed to. Yes sir. You can only limit it to being a tool for benefit of people. Because AI से आप स्पीड पकड़ सकते हो, जैसे आप कंप्यूटर से कर रहे हो, स्पीड पकड़ सकते हो। चीजों की जो मैकेनिकल चीजें हैं, मिनिस्टीरियल चीजें हैं, उसके लिए ठीक है, बट कंप्लीटली डिपेंडेंट होना उस पर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फेटल है अगर उसके ऊपर आप कंप्लीटली रिलाई करने लग जाओ, क्योंकि then that entire human element is gone. तो सर अब एक आते हैं क्लोजिंग क्वेश्चंस पे। सर आपने शुरू में दिल्ली हाई कोर्ट के बीच में कैंटीन की बात की, सर आप जाते हैं, ऐसा आपके मेरे ख्याल से फादर आते से दिल्ली? अभी भी आते हैं, because I have seen him once. हाँ, तो वो अभी भी आते हैं और सिर्फ अपने चाय और वो समोसा और अपने पनीर पकौड़ा खा के और चले, अपनी कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफी, और पी के अपने चले जाते हैं। 2 घंटे के लिए आते हैं हाई कोर्ट, 12 बजे पहुंचते हैं, 2 बजे निकल जाते हैं। आप जाते हैं सर? मैं कैंटीन ना जाए तो मैं तो कहता रहा हूँ, ऐसा लगता है मुझे तो जैसे आज 2 अक्टूबर को बंद क्यों है वो। अच्छा आप रोज जाते हैं सर? बिल्कुल सर लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज है हम लोग के लिए कि मतलब बहुत नॉमिनल रेट्स पे आई थिंक पीपल आर गेटिंग फूड एंड दैट टू गुड फूड। सी दैट इज वेयर अगेन आई से दिल्ली हाई कोर्ट इज द बेस्ट। यस सर। हमारे यहाँ हमारे से मैं जब सेक्रेटरी बना था 2011 में, तो कैंटीन का केटरर चेंज हो रहा था, तो हमें ये सिखाया गया था कि भाई 4-5 चीजें हैं जिसके रेट बिना बार से बात करे तू नहीं बदल सकता। चाय कॉफी के, उसके बटर टोस्ट, यस सर, जो आधे ज्यादा लोग, रोटी, दाल, इनके रेट्स नहीं बदलेगा तू, क्योंकि 90% वहाँ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं यार एक गरम रोटी ले लेते हैं, सब्जी लेके आए और या एक दाल के साथ खाना खा लिया। ये कैंटीन इसीलिए हमारी हमेशा भरी रहती है। अब तो हमने लास्ट अपने टेन्योर में इसको डबल ही कर दिया। डबल साइज हो गया सर, लेकिन फिर भी बैठने की जगह नहीं मिलती। अब वही तो हमारी तादाद इतनी बढ़ गई है, हम क्या करें। बट इतनी बड़ी कैंटीन आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। सर आप मतलब मैं ये कह रहा था कि आप खुद पर्सनली क्या खाते हैं सर वहाँ पे, लाइक एनी फेवरेट डिश यू हैव? देखो जी, फेवरेट तो क्या है, फेवरेट तो है समोसा, और अब उम्र के साथ वो चीज प्रोहिबिशन लिस्ट में आ जाती है। yes, तो इसलिए 2-3 दिन के बाद ही एक खा लेते हैं, हफ्ते में एक तो जरूरी खा लेते हैं। अदरवाइज समोसा तो वहाँ का
ऐसा लगता है कई बार हम कहते हैं कि ये एडिक्टिव बनाया हुआ है। तो दूसरा एक चीज अब मैं आ रहा था सर, आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए करीबन मैं पहले भी कहा 30 साल हो गए, तो आपको सिविल लॉ प्रैक्टिस करने में अच्छा लगता है, क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करने में अच्छा लगता है? फजल, मैंने अपने सीनियर से हर फील्ड में ट्रेनिंग ली थी, बट मेरा हमेशा कहना होता है कि जब हम नए नए वकील बनते हैं तो बेगर्स कांट बी चूजर्स। हम वेट करते हैं कि कौन सा केस आए। अब जब इंडिपेंडेंट हुए तो सिविल के केस थे कम, क्रिमिनल थे ज्यादा। क्रिमिनल के 2-4 आ गए जिसमें सक्सेस मिल गया। अब वो जो सक्सेस जब मिल गया आपको, तो फिर उसकी देखा देखी 1-2 और आ गए, एंड देन वन गॉट ड्रैग्ड इनटू दिस क्रिमिनल लिटिगेशन ओनली। सिविल में करता था, आज भी करता हूँ, मगर अब क्या है कि देयर इज अ लार्ज कंपोनेंट व्हिच इज क्रिमिनल साइड लॉ, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे एज अ सिविल लॉयर ज्यादा जानता है। सब यही जानते हैं क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि 80% ऑफ माय वर्क इज दैट साइड। मी टू साहब, क्रिमिनल साइड वही दिखती है। 80% ऑफ माय वर्क इज दैट साइड, बट ऐसा नहीं है। आई एंजॉय वर्क, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई एंजॉय वर्क, अब वो कहीं पे भी हो मुझे मजा आता है। सर एक क्वेश्चन है सर, जो दिल्ली हाई कोर्ट का कॉरिडोर है, आपको क्या लगता है वो एक नेटवर्किंग हब है या एक गॉसिप लाउंज, क्या आपको लगता है? तुम कौन से कॉरिडोर की बात करते हो? क्रिमिनल सिविल दोनों साहब? नहीं, के जो कोर्ट के बाहर वाला देखो, नेटवर्किंग हब तो नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ एक चीज है कि हमारे कोर्ट का डिजाइन ऐसा होने की वजह से कि देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अंडर वन रूफ, और ऑल कोर्ट्स फेसिंग दैट हाउल। हाँ, ये एक बड़ा यूनिक सा डिजाइन होने की वजह से एक ब्रेकिंग न्यूज का बड़ा अच्छा एरिया है। जो भी कोर्ट से निकल के आ रहा है ना, वो अपनी ब्रेकिंग न्यूज सुना देता है वहाँ। हाँ, और अब उसके बाद वो जब फैलती है तो चाइनीज विस्पर की तरह वो गॉसिप की तरह फैले, या दूसरी तरफ एक फायदा ये भी हो जाता है उसका कि अरे इस मैटर में इस तरह से रिलीफ मिला है, तो चल भाई मेरे पास भी एक क्लाइंट आया, मैं भी इसी को इसी तरह से कर लेता हूँ। मतलब हेल्प। तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बड़ी अच्छी है, वो उस यूनिक डिजाइन की वजह से है, क्योंकि एवरीबॉडी मीट्स। और दूसरा अड्डा, गॉसिप का असली अड्डा तो है हमारा कैंटीन। हाँ सर, वो तो वहां तो सारी इंफॉर्मेशन सब फैलती है ना, वो एक टेबल से दूसरे से तीसरे पे फैलते। और सर जो बार रूम है क्रिमिनल ब्लॉक में 2nd फ्लोर पे, वो तो आप ये समझ लीजिए वहां तो थोड़ा सा आदमी, यू जस्ट गो देयर एंड सिट देयर फॉर जस्ट टू रिलैक्स फॉर अ लिटिल व्हाइल, वेटिंग। इट्स मोर लाइक अ वेटिंग रूम। यस सर। सर अब एक चेंज जो आप फास्ट ट्रैक करना चाहेंगे हाई कोर्ट में, जो होना चाहिए आपके हिसाब से, जो अभी तक नहीं हुआ है या आप करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, या जजेस में, या मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रैक्टिस, कुछ भी चेंज जो आप देखना चाहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट मैं कई चीजों के चेंजेस देखना चाहता हूँ। उनमें से एक सबसे बड़ा चेंज जो कोशिश तो कर रहा था बट वो पूरी तरीके से हुई नहीं, वाज टू इंश्योर देयर इज इनफ वर्किंग स्पेस फॉर द यंगर लॉट। हमने जब ये एस ब्लॉक बना तो कुछ एरियाज ना ऐसे कॉर्नर्स और एजेस ऐसे आ रहे थे जहां चेम्बर का डिजाइन एक पूरा सा ठीक से नहीं बैठता। तो एट दैट टाइम बीएमसीसी के साथ मिलके मैंने इंसिस्ट किया और दे एग्रीड टू इट। BMCC इज द बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन कमेटी ऑफ द हाई कोर्ट। ओके। तो उनके साथ मिलके हमने क्या किया कि जैसे एक चेम्बर अगर हम अबैंडन कर देते हैं, फोरगो कर देते हैं डिजाइन में, तो हमारे पास एक बड़ा कॉर्नर मिल जाता है। यस सर। तो हमने उनको कंसल्टेशन रूम्स बना दिया। हाँ, वो बना है। वो 5-6 ऐसे कंसल्टेशन रूम्स हैं उस बिल्डिंग में, एस ब्लॉक में। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस और व्हाट इज द फीलिंग, द यंगर लॉट इज स्टिल नॉट गोइंग देयर टू यूज दैट एज अ वर्क स्पेस। तो ज्यादातर को मुझे भी अभी पता चला, मुझे नहीं पता था। वो इसलिए भी नहीं पता चला कि एस ब्लॉक दूर पड़ जाता है, जैसे गेट 10 के पास। हाँ, 10, 11, 12 जो है। तो इधर की तरफ ना होने की वजह से अगर आप चेम्बर ब्लॉक्स देखेंगे तो जिनको चेम्बर्स नहीं मिले, जैसे आपने कहा कि फर्स्ट जनरेशन को ये डिसएडवांटेज है। मैं 3rd जनरेशन हूँ, मेरे पास चेम्बर नहीं है। फादर के पास चेम्बर है बट मेरे अपने लिए नहीं है, जबकि डिस्पाइट द फैक्ट दैट बोथ ऑफ अस वर 2 सीनियर एडवोकेट्स एट द सेम टाइम। मतलब when you were practicing, he was a senior advocate. When I became a senior advocate, he had a roaring practice even at that time. But then he's slowly एज की वजह से उन्होंने छोड़ दिया। कोविड आ गया, कोविड की वजह से 2015 में मैं सीनियर बना था, एट दैट टाइम ही वाज एट स्पीक। तो
हम एक ही चेम्बर के अंदर थे, हम्म, तो अब आप वैसे देखिए तो कहाँ से बैठने की जगह कहाँ है, बट स्टिल ठीक है. मैं कहता हूँ आई हैव नो रीजन टू क्रिब yes, because there are others who are worse off than I am, and that's why मैंने इंसिस्ट किया और मैंने उसमें कंसल्टेशन रूम्स ये बनवाए. तो ये वर्क स्पेस की जो दिक्कत है ना, इसको कहीं ना कहीं आपको मीट करना पड़ेगा जिस तरह से द नंबर्स आर इंक्रीजिंग. क्योंकि आज की तारीख में लोगों के पास सामान रखने तक की जगह नहीं है. हम अपने चेम्बर को, क्योंकि आवर चेम्बर हैपेंस टू बी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, इज द फर्स्ट चेम्बर एज यू एंटर द चेम्बर ब्लॉक. yes sir, तो हमारे चेम्बर में आप देखोगे 40-50 लोग आते हैं जो कि अपना सिर्फ बैग रख के चले जाते हैं. क्योंकि आदमी कहाँ रखे, अपना सामान ढोते ढोते तो अपना काम नहीं करेगा ना. वो जैसे हम लोग कोर्ट के बाहर अपने बैग्स रख देते हैं, कोर्ट के बाहर रखते हैं, लोग बार रूम में रखते हैं. पेड़ों के नीचे से मैं सीनियर्स के वो फाइल्स देखे हैं, बाहर जो कैंटीन हाँ. के बाहर है वहाँ. ये जब स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको जगह बनानी पड़ती है. अब हमने वो पीछे वाले सारा बापा नगर वाले एरिया के लिए एप्लीकेशन तो डाली हुई है कि ये हाई कोर्ट को अलॉट हो जाए. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये आती है कि जैसे ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वकीलों पे कोई प्रायोरिटी नहीं है. गवर्नमेंट के लिए चेम्बर ब्लॉक इज नो प्रायोरिटी. वो कहते हैं आप अपना हाई कोर्ट ही शिफ्ट कर लो अगर करना है तो, विच इज नॉट पॉसिबल. yes sir, So, with so many people waiting for chambers, if a common spaces are made available, then perhaps more people can be accommodated. yes, Similar is the situation actually. एक और चीज जो, एक दो चीजें जो मैं और चाहता था, आप कोशिश करते हैं देखो बन जाए. Some call it a little elitist, but it's not elitist. It is more on convenience. See, our lawyer population is aging also. yes, अब आपने इतनी स्प्रेड कर दी हाई कोर्ट, yes, 3 और blocks में. 3 ब्लॉक्स में कर दी, वो तो एक चीज है. और जो चेम्बर ब्लॉक्स आपके दूर दूर बन गए सबके Yes, सारे, sir. तो और रास्ते सारे यहाँ घूमते घुमाते हैं. हुए, yes. तो एक मैंने सजेशन भी दिया था और इस एग्जीक्यूटिव को भी दिया है, तो इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स जो ये आते हैं, ई रिक्शाज टाइप, Yes, sir. समथिंग इन अ मोर प्लेजेंट फैशन. वी सी सो मेनी पीपल. एक तो क्या ना, इंटरकनेक्टिविटी नहीं है, तो उस वजह से क्या है, बरसात में या बहुत ज्यादा तेज गर्मी में ना, आप अपने बुजुर्गों के लिए जो है वो उनको हार्म कर रहे हो विद दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन. और वो सीढ़ियाँ चढ़े उतरे बेचारे, देखता हूँ उनको. तो मैंने इस एग्जीक्यूटिव को भी ये सजेशन दिया है कि आप इस तरह के कार्स ले लो और ये चला दो, ताकि एस ब्लॉक से लेके ब्लॉक 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इन सारे में ये घूम जाए, मेन बिल्डिंग तक आ जाए. एंड बल्कि आगे आगे तो वो दे कैन गो राइट अप टू टर्म, जो वो है कमर्शियल कोर्ट बिल्डिंग, फ्रंट से जा सकती है गाड़ी. तो कम से कम जो ये एल्डरली बरसात में उसमें इधर उधर जो धक्के खाते हैं बेचारे, दैट शुड बी ईज्ड. तो ये 2-3 चीजें मेरे को तब भी ध्यान में थी. अब वो क्या होता है, आपका एक टेन्योर तो इतना ही होता है. आप फिर देन यू सेड राइटली सेड कि कहीं एक अपनी बैलेंस करना है आपको, वकालत से भी और अपनी पर्सनल लाइफ से भी, एंड yes, इधर उधर सारी चीजें होती हैं. तो वो सब देखते देखते मेरे ख्याल से. so अब coming to the last question, how so एक फीमेल लॉयर्स की अब पॉपुलेशन आपके टाइम पे, आई थिंक जब आपने स्टार्ट किया होगा, अब थोड़ी ज्यादा हो गई होगी. नाउ इट इज अबाउट 22% जो हमने लास्ट Yes, किया sir. था. तो सर उसको और बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या मेजर्स ले सकते हैं सर? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं सर, लिंक्डइन पे आजकल मैं कोई पोस्ट देख रहा हूँ जहाँ पे हम लोगों ने भी ये किया था इंक्वायरी इसमें. तो लिखते हैं कि अ चेम्बर और एन फर्म लुकिंग फॉर एन एसोसिएट, ओनली मेल्स. फिर से हमने उनसे फोन करके पूछा ओनली मेल्स क्यों लिखा है आपने? सो दैट लाइक कि लॉ इज अ लॉन्ग आवर प्रोफेशन, मतलब यू हैव टू पुट इन लाइक लॉन्ग आवर्स, लाइक 8 बज जाते, 10 बज जाते, 11 बज जाते. सो वी डोंट वांट फीमेल, वी वांट मेल्स. तो ऐसे गलत सोच है आपके हिसाब से? बिकॉज बिल्कुल गलत सोच है. आजकल लड़के लड़कियां सब बराबर के फोकस्ड हैं. यस सर. एंड आजकल क्या, मैं तो तुम्हें लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ. रेबेका जॉन सीनियर एडवोकेट, वो डैड की चेम्बर से थी, मेरी सीनियर थी लॉ में. यस सर. ऐसा तो कोई नहीं था कि वो उन्होंने लॉन्ग आवर्स नहीं करे या कुछ नहीं करा अपने. हाँ ठीक है, ये ज़रूर था कि अपने काम करके रात को ऑटो लेके जो भी है अपने घर चली जाती थी. बट बहुत ज़्यादा लेट आवर्स रखे ही नहीं उन्होंने. तो ये तो अपने अगेन, शी गॉट मैरिड ऑल्सो व्हाइल शी वाज विद डैड.
शी हैड अ बेबी ऑल्सो, तो ये थोड़ी है ना अपने पर्सनल फैमिली लाइफ को कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है. शी यूज्ड टू टेक हर वेकेशंस ऑल्सो एंड वी शेयर अ लवली रिलेशनशिप अमंगस्ट ईच अदर. तो हम सारे तो मिलते रहते हैं और आए दिन उठते बैठते हैं. तो ये तो मैं नहीं मानता. अनदर गर्ल who's just been designated as a senior, सोनू भटनागर. Yes, sir. तो कोई ऐसी वो नहीं है दिक्कत, लॉन्ग आवर्स है उसमें, अपने करते ही हैं काम. Yes, sir. एंड वन गर्ल विच वर्थ मेंशनिंग इज पूजा सहगल, सीनियर एडवोकेट बनी है अभी. Yes, sir. शी ट्रेवल्स फ्रॉम सोनीपत एवरी डे Hmm. and goes back to Sonipat every day. I know, sir. Now imagine if she can do that, 1.5 hours coming or 2 hours coming and 2 hours going. What are you talking of hours? That's a तो गलत सोच है. Yes. हाँ, एक चीज जो मेरे को सुनने में जरूर आई है, हाउ फार इज इट करेक्ट आई डोंट नो, बट दैट इज के ever since this issue happened in the high court about the lady lawyers complaining कि जी उसने हाथ मारा या ये करा वो करा, तो उसके बाद से लोग थोड़े अप्रीहेंसिव जरूर हो गए हैं Hmm. कि भाई 10 में 4 तो लड़कियां रख लेंगे, बट सिर्फ कि भाई अगर एक ही सीट है तो एक ही वैकेंसी पे वो रखने में कतराते हैं. बट दैट इज आउट ऑफ ओनली प्रॉब्ली देयर ओन फियर. क्योंकि अगर आपकी वर्क एनवायरनमेंट आपने वैसे ही अच्छा रखा हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. But अब मानते हैं सर कि law is a man's world, like litigation especially is No more, no more. no more. Yes. Because some of the areas the women have excelled far, right? Yes. It's no more a man's world. You can say some of the niche practices may be like that. Like in a rural area, in a district court, on criminal side, you may not find girls doing well. That's because of the psyche of the public who are engaging the lawyers. Yes, sir. They feel कि मैं एक लड़के के पास चला जाऊं, Hmm. खून का मामला है Hmm. और रेप का मामला है, या वो जो झगड़ा मतलब पूरा गांव का गांव झगड़ने लग गया, Yes, sir. वहां तो समझ में आता है कि भाई दैट्स द साइकी ऑफ द पब्लिक, Hmm. बट नॉट इन एजुकेटेड एरियाज. Yes. So thank you for being a part of this interview, and it's been such a informative session of interaction with you. I think, Fazal, the research that you have done, the effort that you have put in finding out what are the issues which face everyone in the Delhi High Court, there would be hardly anyone who would not feel like subscribing to your Thank channel and to listen to what you say. And in future also जो तुम करोगे, Yes, sir. I'm sure people would like to follow it, because इतने incisive questions जो है वो अभी तक मेरे से तो किसी ने जब मैं सिटिंग प्रेसिडेंट था तब भी नहीं पूछते थे. और जिस तरह से वैरायटी तुमने चूज करी है अपने क्वेरीज की, तो आई फील, आई एम श्योर everybody will enjoy listening to you, not just this interview but even whatever you do in future. So best of luck and God bless you. Thank you, sir. Thank you.